Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. In previous lecture, I have given introduction to the first lesson, living words adaptation and classification. In that, we have covered adaptation in the aquatic plants. Then we have seen adaptation in deserts plants. Okay, now we have to start the adaptation in the plants of the forest regions. ओके अब हम लोगों को किसके बारे में अडेप्टेशन पढ़ना है? जो फॉरेस्ट रीजन्स में पाए जाने वाले या फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स है उसका हम लोग क्या पढ़ने वाले? एडाप्टेशंस. ओके, नाउ ऑब्जर्व द फिगर 1.6 forest. Now in that figure some plants are very tall, some are short or dwarf. A variety of plants, trees, shrubs and herbs are found in the forest. We already know that yes, classification of the plant, that they are classified into the shrubs, herbs, trees. In the forest, all these type of the plants are found in the forest. So these plants compete amongst themselves for sunlight. दिस प्लांट compete क्या करता है? ये competitions रहता है इनके अंदर. किसके लिए? स्पेस के लिए, सॉइल, वाटर एंड सनलाइट के लिए. Hence trees grow tall to get the sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of the trees. So in the forest, to get the sunlight, the climbers. So what are climbers? Those plant who climbs taking the supports of the other plants called climbers, and creepers who creep means the plants which creep or spread on the land called the creepers. So they also yes compete to the other plant for the space. Spring like tendrils on the stem of the some climbers is example of the adaptations. So now the climbers have the spring like structures called tendrils. उसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स. ओके, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर देखा होगा आपने. तो क्या करते हैं वो जो टेंड्रिल्स है, वो टेंड्रिल्स किस में हेल्पफुल होते हैं? उनको ऊपर की तरफ मूव होने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं. Okay, adaptation in grassland plants. Now grassland, the regions on the earth where grasses are found in huge quantity are called the grassland. You might have heard about the savanna region. That savanna region is the grasslands. And in grassland, the huge varieties of the grasses and shrubs are found. The diverse type of the bushes and the grasses are found in the grassland. जो ग्रासलैंड एरिया होता है वहाँ पे क्या मिलते हैं हम लोगों को? बुशेस. बुशेस मीन्स झाड़ियाँ जो कम हाइट तक क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. एंड सेकेंड थिंग, ग्रासेस, डिफरेंट टाइप के जो ग्रासेस दैट कम अंडर द श्रब्स. द फाइब्रस रूट्स ऑफ द ग्रासेस प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. अब जो ग्रासेस है ग्रासलैंड में, ये दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. व्हाट इज द सॉइल इरोजन? Flowing of the soil, fertile soil, because of the winds of the water, because of the winds of the air. Okay, loss of the upper layer of the fertile soil because of the wind of the current, because of the wind of the water, called the soil erosion. So these fibrous roots, okay, grasses having which type of the root system? Fibrous root system. So this fibrous root system binds the soil, and that's why it prevents the soil erosion. Forest in the equatorial regions are dense. Now forest in the equatorial regions are dense. So what is equatorial region? Those area or those forests which are near the equator of the earth. Now you might have heard about the equator. Equator is imaginary line that divides the earth into the two equal halves. Okay, and the two equal halves are called as the north sphere and
साउथ स्फीयर्स। तो जो अर्थ को क्या करता है, दो इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो जो एरिया इक्वेटर के नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट है, जो अर्थ के इक्वेटर के जो क्लोज प्रेजेंट है, इन दैट एरिया, इन दैट फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट आर डेंस। अब डेंस मतलब क्या होता है, जहाँ पे ह्यूज वेजिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे, प्लांट्स होंगे, श्रब्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दीज ग्रासेस। और इस ग्रासलैंड एरिया में एलिफेंट, टाइगर, डियर कैन रिमेन हिडन, उसमें जो छुपे हुए रहते हैं या छुप सकते हैं। However, grasses in the cold regions are very short. और जो grasses होते हैं कोल्ड रीजन्स, वहाँ पे वो ग्रासेस बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो वहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं वो छुप नहीं सकते, हाइट नहीं कर सकते अपने आप को। एनिमल्स लाइक रैबिट्स आर फाउंड इन सच ग्रासेस। तो इन स्नोई रीजन और कोल्ड एरिया वेयर there are the grassland, in that area the small size animals like rabbits are found. Vast meadows are found in the hilly area as well as plains. अब जो meadows होते हैं, यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्मॉल ग्रासेस ग्रो होते हैं, ऐसे meadows हिली एरिया में मिलते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस याम एंड पोटैटो। ओके, याम। अब ये याम क्या है, एलिफेंट याम के बारे में सुना होगा आपने। और सुरन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुरन। तो देखो यहाँ पे याम एंड पोटैटो, ओके, दोनों का कलर एक जैसा दिखाई देता है। ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द एडाप्टेशंस इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक पोटैटोज, ग्राउंडनट, याम, वाटर, हैसिन, एलो, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grapes, wine, etc., and other plant in your surrounding. So this is the activity. Okay, so in this activity, what to do? You have to observe the plants of the potato and its parts. Okay, so what you will find that the potatoes grows inside the soil. वो कहाँ पे आपको मिलेगा, सॉइल के अंदर। ओके, एंड दिस इज द ट्यूबर ऑफ दैट प्लांट। ये क्या होता है, उस प्लांट का ट्यूबर होता है, नॉट रूट, रूट नहीं होता, ट्यूबर होता है। एंड एलिफेंट याम, जो एलिफेंट याम है, दिस ऑल्सो ग्रोज इन द इनसाइड द सॉइल। ये भी कहाँ पे मिलता है, सॉइल के अंदर। अकेसिया, अकेसिया आर फाउंड इन द, acacia means bubble, acacia are found in the desert area. And carrot, onion, carrot and onion, beet, grapes, wine, etc. तो इनके क्या करना है, yes, what you have to observe, their stem you have to observe, stem देखना है, उनके लीफ ऑब्जर्व करना है, और क्या डिफरेंसेस है दैट यू हैव टू नोट डाउन। अडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ द फूड इन द प्लांट्स। ओके, नाउ अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना है, अडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ द फूड इन द प्लांट। व्हाट इज meant by ingestion? Ingestion means taking the food inside of the body। क्या करना, फूड को बॉडी के अंदर लेने को ही क्या बोलते हैं, इंजेशन। ओके, तो नाउ different type of adaptations are there in the different plants as well as in the different animals to take the food inside. Okay, you have seen that, yes, that birds picks the grains। birds क्या करती है, ग्रेन को पिक करती है। एंड स्नेक, स्नेक क्या करता है, वो swallow करता है, उसको डायरेक्ट निगल लेता है। ओके, और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इसको, ये इसको च्यू करते हैं, चबा के खाते हैं। और क्या देखा आपने, जो ruminating एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, वो क्या करते, पहले जल्दी से खाने को खा लेते, उसके बाद में वो निकालने के बाद में वापस से मुंह में लाके उसको च्यू करते। तो उनका क्या है, इस इंजेशन, टेकिंग द फूड इनसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो यहाँ पे इंजेशन के अडॉप्टेशंस क्या क्या है दैट वी हैव टू सी नाउ।
The most of the plants are anchored in the ground and are autotrophic. जो most of the plants है, they are anchored in the ground and are autotrophic. वो ground से support लेते हैं और autotrophic होते हैं. Autotrophic, okay. So what is autotrophic? Those living things that can synthesize their food by their own called the autotrophic, and only the green plants are the autotrophic plants, okay. And for that the chlorophyll is the must. However, plants like dodder, cuscuta are parasitic, but plant cuscuta is parasitic. What is meant by the parasitic? Those plants which are dependent on other plants for their food, called parasitic plants, okay. And you know that most of the bacteria are parasitic because they dependent on other living things for their foods. The plant's body of the dodder consists of yellow wire-like stems. Now see the figure 1.1 cuscuta. In that, this fiber-like structure, thin thread-like structure, which is yellow in color. Okay, this is present in the dodder plant, and this is nothing but the वायर लाइक स्टेम्स. ये जो आपको दिखाई दे रहा है किसकी तरह ये स्टेम है? वायर की तरह. इट इज लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. और ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो वायर लाइक स्टेम, दिस डू नॉट possess the chlorophyll, that's why it cannot perform the photosynthesis. However, it has the हॉस्टोरियल सकिंग रूट्स. बट इसके अंदर क्या रहता है? सकिंग रूट्स रहते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो होस्ट होगा जिस प्लांट के ऊपर ये लोकेट होंगे, प्रेजेंट रहेंगे, उससे वो क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन सक करते हैं. सक करना मतलब उनसे एब्जॉर्ब करना और चूसना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग. तो वहाँ से क्या करते हैं, वो अपना जो ये पार्ट्स होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते और जो भी न्यूट्रिशंस रहता है उस होस्ट प्लांट से वो क्या करते ले लेते. तो इट इज़ लीफलेस, इस पे लीफ नहीं होता एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता. तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक नहीं है. दैट्स वाई डिपेंडेड ऑन द अदर प्लांट फॉर फूड. However, it has the hostorial sucking roots for absorbing nutrient from the host plant. इसलिए इसके पास कौन से रूट्स है? एब्जॉर्बिंग करने के लिए सकिंग रूट्स है. These roots penetrate up to the conducting vessels of the host plant to absorb water and food. तो ये प्लांट क्या करते हैं, जो दूसरा प्लांट है, जो होस्ट प्लांट है, उस होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग वेसल्स तक पेनिट्रेट होते हैं. मीन्स उसके अंदर क्या करते हैं, पेनिट्रेट, उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं. एंड देन दे टेक द फूड एंड वाटर. फंगी डू नॉट हैव द क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता. दैट्स वाई यस दे जनरली लुक वाइट इन कलर. ये जो फंगी होते कौन से कलर के दिखाई देते हैं? वाइट कलर के. बिकॉज ऑफ द absence of the chlorophyll, they obtain food from starchy foodstuff like भाकरी and bread. ओके, तो ये क्या करते हैं, अगर भाकरी मीन्स रोटी चपाती या तो ब्रेड पे अगर ये ग्रो करते हैं तो दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम दैट मटेरियल. दे हैव द रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. और आपने देखा होगा म्यूकर. तो जो ये फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, जो भाकरी या ब्रेड है और जो स्वीट्स है जिस पे वो ग्रो होते हैं, तो फ्रॉम दैट दे ऑब्टेन द फूड.
Plants like needs the nitrogen, phosphorus and potassium for the growth. So these are the मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट्स। ये जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये पोटेशियम है, ये क्या है प्लांट के मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रोपोर्शन। Plants that grow in the soil which is deficient in the nitrogen like Drosera, sundew, Venus flytrap, pitcher plant, etc. fulfill their needs for nitrogen by consuming insects। अब इस टाइप के प्लांट के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, जो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं इंसेक्टिसाइड या इंसेक्टिओरस प्लांट। क्या कहते हैं हम लोग? इंसेक्टिओरस प्लांट। ओके, तो इंसेक्टिओरस प्लांट क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब्स द केमिकल्स प्रेजेंट इन दैट इंसेक्ट। फर्स्ट दे release the chemicals. In that chemicals, that insect that are trapped get digested and then they absorb them. The absorption are seen in this plant which serve to attract insect and hold them captive. In such plant, in Drosera, in fly, Venestrape, pitcher, there are different parts that are not in actual the flowers. They are colorful and because of that the insect get attracted and trapped in that. So that colorful parts of that plants are nothing but the adaptations in that plants. Now adaptations in animals. Make a list of animal in your surrounding. Compare the diversity of animals listed by your friend with your list. तो क्या करना है इसमें आपको? एक एक्टिविटी, जो भी आपके आसपास में जो एनिमल्स है उसकी पहले लिस्ट प्रिपेयर करनी है, और जो एनिमल की डाइवर्सिटी है मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स, उसको अपने लिस्ट से और अपने फ्रेंड के लिस्ट से कंपेयर करना। मीन्स you and your friend have to make the list and then you have to compare it. Discuss the habitats. What is habitat? Place of living, like the aquatic, terrestrial, xerophytic। ऐसा आपको क्या करना है? उसको क्लासीफाई करना है कि वो एनिमल्स क्या है, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है कि ज़ेरोफाइटिक है। फूड हैबिट्स, अब उनका जो फूड की हैबिट्स क्या है, किस तरह के है, मतलब ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है, हर्बीओरस है, कार्निओरस है। ऐसा आपको क्या करना है? उसको भी क्लासीफाई करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर्स उसका किस टाइप का है उसको भी क्लासीफाई करना है। लाइक वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, then it will be vertebrate. If it is absent, it will be invertebrate. Wings, अब उसके wings, gills और tails etc. ये सबको क्या करना है? कंपेयर करना। एंड प्रिपेयर ए चार्ट। What differences do you see between the terrestrial and aquatic animals? अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस है। तो यू विल फाइंड दैट द terrestrial animals breathe with the help of the lungs and aquatic they breathe with the help of the gills। वो क्या करते हैं? गिल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं। As compared to the terrestrial animal, the skin and body shape of the aquatic animal appear to have undergo undergone changes। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उसके कंपेयर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उसकी स्किन और उसका बॉडी का जो शेप होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जो एक्वेटिक होगा उनकी बॉडी कैसी होगी? स्लेंडर इन स्पिंडल शेप की होगी, सो दैट दे कैन रेजिस्ट द विंड्स ऑफ द वाटर। विंड्स जो होती है, जो पानी की जो फ्लो होती है उसको वो क्या करे? अपोज कर सके। तो ऐसा उनका जो बॉडी होगा वो स्पिंडल शेप होगा। मीन्स जो उनका हेड रीजन होगा दैट विल बी नैरो,
एंड जो मिडल पोर्शन होगा दैट विल बी ब्रॉड एंड अगेन दैट टेल रीजन विल ऑल्सो नैरो। तो ये क्या है, स्पिंडल शेप की बॉडी हो। फिशेस हैव द स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। जो एक्वेटिक एनिमल फिशेस जब ऑब्जर्व करोगे देन देयर विल बी स्केल्स ऑन द स्किन एंड fins will be there, and that fins will be for the different purposes and different types like tail fins. Their body tapers towards both its end. उसकी जो बॉडी होगी दोनों एंड्स पे क्या होगी, नैरो होगी। लाइक ए स्पिंडल फिश ब्रीदेथ विद द हेल्प ऑफ द गिल्स इंस्टेड ऑफ ए नोज। और ये क्या करेंगे, जो एक्वेटिक एनिमल फिश होगी वो गिल्स के हेल्प से क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। और उनके आईज जो है उसमें ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं। अब ये आईलिड्स क्या है, जिसको हम पलक बोलते हैं, वही क्या है, आईलिड्स है। अब हमारे पलक क्या है, ट्रांसपेरेंट है क्या, आर पार दिखाई देते हैं क्या, नहीं ना। तो हमारे जो है व्हाट हैपेंड, so what is difference in the eyelids of the terrestrial and the aquatic animal? The eyelids is not transparent in the terrestrial animals, but in the aquatic it is transparent. They have air bladders within the body to help them to float. अब इनके जो बॉडी होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, उनमें जो एयर ब्लैडर्स होते हैं। तो दैट एक्वेटिक एनिमल्स हैव द एयर ब्लैडर विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। तो एयर ब्लैडर्स होते हैं, इन दैट air can fill, and because of that their body becomes light in weight, and because of that it helps in floating of that animals. As the frog and duck have the webbed toes। अब जो फ्रॉग्स और डक होते हैं ये दोनों किस तरह के, एम्फीबियंस है, मीन्स दे कैन लिव ऑन द वाटर एंड ऑन द लैंड। तो दे हैव द वेब्ड टोज, इनके जो अंगूठे होते हैं और फिंगर्स जो होते हैं उसमें वेब्ड होता है। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। जो ओर्स होते हैं, जो बोट को सेल करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओर्स। तो वो क्या करते हैं, उसकी तरह ही ये जो वेब्ड टोज है वो उनको क्या करता है, उनको स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर ऑफ द बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैंड। अब ये जो डक है उनके फेदर्स जो होते हैं वे वैक्सी होते हैं। तो व्हेन वाटर्स कम इन कांटेक्ट विद दैट फेदर तो इट डू नॉट बिकम वेट। तो वो वेट नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट दे इजीली yes float or swim on the water. Webbed toes, slippery smooth skin and a triangular head help frog to swim easily through the water। अब जो फ्रॉग है उसमें जो वेब्ड टोज है और स्लीपरी स्लिप होता है उसकी स्किन, और स्मूथ स्किन है, और ट्रायंगुलर जो शेप का हेड है वो उसको स्विम करने में, तैरने में हेल्पफुल होता है। तो ऑल दीज आर द एडेप्टेशन इन द एक्वेटिक एनिमल्स। ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये क्या है, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। दे कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन द लैंड।
अब इसके अंदर भी किस तरह का अडेप्टेशंस है कि व्हेन द फ्रॉग इज इनसाइड द वाटर दैट टाइम दैट फ्रॉग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द स्किन, स्किन के थ्रू क्या करता है वो ब्रीथ करता है। एंड व्हेन दैट फ्रॉग इज ऑन द लैंड दैट टाइम इट ब्रीथ यूजिंग द नोज एंड द लंग्स। द टिपिकल कलर ऑफ द फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमंग ग्रासेस। अब जो फ्रॉग का जो बैक होता है उसका जो टिपिकल कलर होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो जो उसका प्रे होता है उससे वो क्या करता है, हेल्प करता है उसको हाइड करने में, छुपाने में। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर अडेप्टेशंस। अब ऐसे ही दूसरे एम्फीबियन जो आपको ऑलरेडी पता है उसके उसका लिस्ट प्रिपेयर करना है और उसमें किस टाइप का अडेप्टेशन है दैट यू हैव टू नोट डाउन। नाउ अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। अब जो फॉरेस्ट में रहने वाले और ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल है उसमें किस टाइप का एडेप्टेशंस है वो हम लोग स्टडी करेंगे। कार्निवोरस एनिमल्स। अब ये कार्निवोरस मीन्स द एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश, जो मांस खाने वाले एनिमल है दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल लाइक द वाइल्ड डॉग, जंगली जो डॉग है, और दूसरा जो है फॉक्स, टाइगर एंड लॉयन हैव द स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो इनके जो लेग्स होते वो बहुत ही स्ट्रांग होते सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे, ताकि वो अपने शिकार को क्या करें, पकड़ सके। इसलिए उनके लेग्स जो स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स। दे हैव claws and their canine teeth are sharp and pointed। अब उनके जो फिंगर्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ द क्लॉ, क्लॉज के फॉर्म में होते हैं, पंजों के फॉर्म में होते हैं। एंड देयर कैनाइन टीथ, और उनका जो कैनाइन टीथ होता है वो बहुत ही शार्प एंड पॉइंटेड होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ, इस टाइप के टीथ का क्या फंक्शन है। तो द फंक्शन ऑफ कैनाइन्स आर टू टेयर द फ्लैश, मांस को क्या करना, टेयर करना, उसके में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। टाइगर हैव पेड claws, this enables them to silently stalk their prey and capture it easily. The eyes of the predator carnivores are located in front of their head. It helps them to spot their prey from a long distance. अब इस तरह के जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती है उनके हेड के एकदम सामने होती है, साइड में नहीं होती, एकदम कहाँ होती है, सामने। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन ईजिली फाइंड आउट देयर प्रे फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या है, वो लॉन्ग डिस्टेंस से ही अपने प्रे को, अपने शिकार को वो क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। द आइज ऑफ द हर्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड। दो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस के जो आइज होते हैं वो फोरहेड के नीचे होते हैं। फोरहेड मतलब जो एकदम सामने वाला अपना हेड का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरहेड। तो फोरहेड के नीचे होते हैं। वेयर एज दैट आईज इन द कार्निवोरस इट इज जस्ट लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हेड, जबकि वो क्या होता है, एकदम सामने होता है हेड के। दिस गिव देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर। अब यहाँ पे जो उनके आइज फोरहेड के जस्ट बिलो है, बिकॉज ऑफ दैट इट गिव्स द वाइड एंगल विजन, ये क्या करते हैं, उनके विजन जो एंगल है विजन का वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने प्रीडेटर, अपने शिकारी से अपने आप को क्या कर सकते, सेव कर सकते, बचा सकते। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टेपरिंग विद द स्ट्रॉन्ग हुप्स, और उनके जो लेग्स होते हैं, पैर जो होते हैं लॉन्ग होते हैं एंड टेपरिंग और पतले होते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग हुप्स, और जो एकदम मजबूत हुप्स के साथ।
हुक मतलब जो खुर होता है उनका, जो नेल्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। विच इनेबल्स देम टू रन फास्ट, टॉक टेकिंग लॉन्ग लिप्स, जो उनको फास्ट रन करने में हेल्प करता है और लॉन्ग जंप लेने में हेल्प करता है। दे आर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस एंड द डिफरेंट डायरेक्शन, और उनके जो लंबे और फ्रीली और फ्लेक्सिबल जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो साउंड जो है लॉन्ग डिस्टेंस की रिसीव कर सकते हैं, इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। डियर एंड ब्लैक बक्स हैव द कलर दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग, जो डियर होता है और ब्लैक बक्स होते हैं उनके कलर जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है या जो सराउंडिंग में प्रेजेंट जो प्लांट्स होते हैं उससे वो मैच होता है। बिकॉज ऑफ दैट दे कैन हाइड देमसेल्फ and they can protect themselves from the predator. Their teeth are strong for chewing tough plant material. अब ये herbivores होते हैं, इनको parts of the plant जो है eat करना पड़ता है, खाना पड़ता है। Because of that they have the strong teeth. इसकी वजह से उनके teeth strong होते हैं। Now student, if you have any doubt ask to me now, then I will end the meeting. Sorry, what happened? Do you want to ask anything? Then, huh? Adaptation in animals. So which type of adaptation do you want to ask? Is anybody having any doubt, student? Okay, now I'm ending the meeting.